one numerical I am going to explain that a centrifugal fan has a circular inlet duct of 0.45 mm diameter and rectangular outlet duct 0.45 meter by 0.375 meter. The static pressure at the fan inlet is minus 12.5 mm of water and static pressure at the fan outlet is 25 mm of water when the fan delivers 115 meter cube per minute and absorb 1 kilowatt. Assuming standard air density in both the duct and compressibility factor is 1. Determine A. Total pressure at the fan inlet and outlet. B. Fan total pressure and fan static pressure. And C. Fan efficiency and fan static efficiency. Now we have to see what are the given things. Given D. Diameter of the circular duct 0.545 meter. A. Rectangular duct length 0.45, width 0.375, PS1 static pressure minus 12.5 mm of water and PS2 outlet static pressure 25 mm of water. Q quantity of the air 115 meter cube per minute and BP that is the power consumed 1 kilowatt and Kp constant. So PT1 total pressure at the fan inlet and PT2 total pressure at the fan outlet. Cross sectional area of the circular duct that can be find out A1 pi by 4 d square. D हमको मालूम है, ये निकल गया हमारा, इतना आ गया 0.16 मीटर स्क्वायर 0.16 meter square. Next, on the next page, then we have to see that velocity of the air in the inlet of duct V1, quantity of air into area already हमने निकाला है, quantity हमको मालूम है 718.7 meter cube per minute और it can be written as 11.98 meter cube per second. ये per minute में था, ये per second में हुआ. So we know that the velocity pressure in the inlet duct PV1 V1 क्या हो गया, velocity pressure हो गया, inlet में circular है, that will be V1 upon 4.04 whole square. V1 की वैल्यू हमने निकाली 11.98 लिख दिया 4, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है प्रेशर V1. Then we get the value 8.8 mm of water. Next, total pressure at the fan inlet, that is static pressure plus velocity pressure. Static pressure is given minus 12.5 mm of water numerically if you see, then plus velocity pressure अभी हमने निकाला है, then total pressure minus 3.7 mm of water. ठीक है, स्टैटिक प्रेशर जो हुआ हमारा इनलेट पे इतना हुआ. अब आउटलेट पे देखा जाए, इनलेट और आउटलेट दोनों पर निकालना है. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आउटलेट डक्ट A2 कितना है, A इंटू बी दैट इज द लेंथ इंटू विड्थ 0.45 इंटू 0.375, तो मल्टीप्लाई किया हमने 0.17 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ द एयर इन द आउटसाइड डक्ट कितना हो गया V2 इज इक्वल टू Q अपन A2. वहाँ पर Q अपन A1 था, यहाँ पर Q अपन A2, चूँकि एक साइड पर सर्कुलर डक्ट था, एक साइड पर रेक्टेंगुलर डक्ट है, तो उससे हमने निकाला V2 की वैल्यू 676.5 मीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू 11.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. We know that the velocity pressure in the outlet of the duct, वो हमारा PV1 velocity pressure, PV2 upon 4.04 स्टैंडर्ड है, ये तो डक्ट के लिए होता है. V2 की वैल्यू हमने निकाली है 11.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. 11.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमने वैल्यू रखा, 7.8 mm ऑफ वाटर आ गया. अब टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर एट द फैन आउटलेट PT2 स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर एट द पॉइंट 2. स्टैटिक प्रेशर 25, वेलोसिटी प्रेशर अभी हमने निकाला है. स्टैटिक प्रेशर हमारा जो है वो दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल हो गया 32.8 mm ऑफ वाटर, पूरा प्रेशर इतना आ जाएगा. नाउ
बी पार्ट, the fan total pressure and fan static pressure. Fan total pressure and fan static pressure. We know that the fan total pressure, ये हमको मालूम है, PTF, फैन का टोटल प्रेशर क्या हुआ, फैन टोटल प्रेशर एंड फैन स्टैटिक प्रेशर. तो PTF टोटल प्रेशर T2 पर आउटलेट हो रहा है, T1 पर इनलेट हो रहा है, दोनों प्रेशर हमने निकाला है. 32.8 माइनस 3.7 पहले में निकला था हमारा, -3.7. अगर आपको देखिए ऊपर में टोटल प्रेशर ऑफ द फैन एट इनलेट -3.7, तो इतना हमारा हो गया mm ऑफ वाटर. ये हमारा आंसर हो गया. अब ये आपका फैन प्रेशर, ये तो हुआ आपका फैन टोटल प्रेशर एंड फैन स्टैटिक. फैन टोटल प्रेशर ये है, माइंड इट, टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर क्या है फैन का, इनलेट माइनस आउटलेट. फैन स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, फैन टोटल प्रेशर माइनस फैन वेलोसिटी प्रेशर. फैन टोटल प्रेशर ऑलरेडी हम निकाले हैं अभी 36.5 mm ऑफ वाटर, और फैन वेलोसिटी प्रेशर कितना हो गया, वो ऑलरेडी हमने 7.8 निकाला हुआ है. यहाँ देखिए फैन वेलोसिटी प्रेशर -7.8 किया तो 28.7 mm ऑफ वाटर आ गया. फिर पूछ रहा है सी पार्ट, फैन टोटल एफिशिएंसी एंड फैन स्टैटिक एफिशिएंसी. माइंडेड, फैन टोटल एफिशिएंसी एंड फैन स्टैटिक एफिशिएंसी. वी नो दैट फैन पावर ऑफ द एयर, ये फार्मूला हमने पहले बताया आपको पहले लेक्चर में, P80 एटमॉस्फेयर 9.81 क्यू PTF इंटू KP अपॉन 60. KP इज द कांस्टेंट. तो अब हम सब वैल्यू लिखेंगे इसमें, 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 115 इंटू 36.1 इंटू 1. ऑलरेडी हमने 36.1 यहाँ पे 36.5 निकाला हुआ है, इंटू 1 कांस्टेंट दिया हुआ हमारा. 115 आपका PTF भी जो हमने निकाला हुआ है, दैट इज़ टोटल फैन प्रेशर 115, और सॉरी PTF तो Q जो हमारा 115 है, Q तो हमने पहले दिया हुआ हमको 115, देखो हर जगह यूज़ किया 115, ठीक है, यहाँ भी देखो 115. तो इस फार्मूले में 9.81 इंटू 115 आ गया. PTF टोटल प्रेशर अभी हमने निकाला है, PTF दैट इज 36.6 लिखा, और K जो है कांस्टेंट है उसको हमने लिखा डिवाइड बाई 60. ये वैल्यू हमारा वाट में आ गया, ठीक है. इज इक्वल टू 686.3 वाट इज इक्वल टू 0.6863 किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस सीधा सीधा डिवाइड कर दिया हमने तो निकल गया. तो अब उसके बाद क्या कहना है ये, एंड स्टैटिक फैन पावर का भी फार्मूला होता है 9.81 क्यू PST. माइंड इट, यहाँ पर TF टोटल फैन प्रेशर, स्टैटिक फैन प्रेशर, ठीक है, इंटू KP अपॉन 60, सेम चीज़ है, Q वही है. अब स्टैटिक फैन प्रेशर कितना था हमारा, निकाला हमने 32.8 mm ऑफ वाटर. तो 32.8 mm ऑफ वाटर हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी इन वाट. अब वाट को किलोवाट में चेंज किया फिर हमने, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा. फिर पूछ रहा है फैन टोटल एफिशिएंसी, दैट इज फैन टोटल एफिशिएंसी दैट इज पावर डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड, BP ब्रेक पावर, दैट इज P80 तो हम निकाल रखे हैं, ये डिवाइडेड बाय जो हमको दिया हुआ BP दिया हुआ 1 हमने निकाल दिया इतना, उस तरह से. एंड फैन स्टैटिक एफिशिएंसी दैट इज P80 डिवाइडेड बाय BP फिर हो जाएगा, ऑलरेडी हम निकाल चुके P80 ऊपर में, P80 निकाला है, PST स्टैटिक निकाला हुआ है, ठीक है. एक पावर हो गया तुम्हारा, और दूसरा एक एयर पावर हो गया, स्टैटिक फैन एयर पावर, और दूसरा टोटल एफिशिएंसी. तो वहाँ से हमने निकाल लिया आपका एफिशिएंसी फैन का, और एफिशिएंसी स्टैटिक एफिशिएंसी एंड टोटल एफिशिएंसी, दोनों की वैल्यू हमने PA अपॉन BP एक, P80 अपॉन BP एक हो गया, और PST अपॉन BP हो गया. BP के वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने उसको पुट अप किया यहाँ पर, और हमने सब निकाल लिया. तो इस तरह से हम सभी आंसर्स निकाल लिए.
पहला आंसर था टोटल प्रेशर एट द फैन इनलेट हो गया। दूसरा था बेटा हमारा टोटल प्रेशर एट द फैन आउटलेट हो गया। तीसरा था, ये दोनों आंसर हुए पार्ट के। तीसरा था हमारा फैन टोटल प्रेशर एंड फैन स्टैटिक प्रेशर, ये दोनों निकाल लिया हमने। फिर सी था हमारा फैन टोटल एफिशिएंसी एंड फैन स्टैटिक एफिशिएंसी, फैन टोटल एफिशिएंसी निकाला, फैन स्टैटिक एफिशिएंसी निकाला। फिर था फैन स्टैटिक एफिशिएंसी निकाला। फिर टोटल एफिशिएंसी था, टोटल एफिशिएंसी के लिए फैन टोटल एफिशिएंसी निकाला। फिर था फैन स्टैटिक एफिशिएंसी, फैन स्टैटिक एफिशिएंसी निकाला। इस तरह से पूरे वैल्यू हमने निकाल लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये खत्म हुआ न्यूमेरिकल।